Assalamualaikum dear students. I'm Dr. Amreen and I'm your course instructor for the course Physical Agents and Electrotherapy 2. In today's lecture, we will be continuing with new chapter that is compression therapy. And initially after midterm, we have studied about ultrasound therapy in detail. So I will revise what we have studied in the last lecture and then I'll move towards today's lecture. And the learning objective of today's lecture are basically, after the end of this session, you would be clear that what is the reason we are using compression therapy. Actually, what are the physiological effects that the compression therapy is going to bring, and how it is going to help in different types of the management of edema. We will also discuss in our coming lecture about other clinical indications of compression therapy, along with their application, technique, and contraindications and precaution. So let's revise the last lecture. In the previous lecture, we have studied about ultrasound therapy and all the techniques of the application of ultrasound therapy. We said we can use them directly, we can use them underwater technique, we can use like coupling medias, and we've also discussed about the phonophoresis. Phonophoresis is the applications of medically induced ions that we are going to transfer in the tissues with the help of sound waves. We have also gone through the contraindications and precautions of ultrasound therapy in detail. So let's start today's lecture. That's all about the compression. So let me tell what this compression is and how this compression is actually related to our system to when we are going to apply on the human body. So this technique is application of a mechanical force that increases the external pressure on the body or a segment of the body where we are going to apply. What we do is actually we give an external pressure, mean a mechanical force that increases the pressure over the part of the body where we are going to apply. There are different ways we can apply compression therapy. So like you have seen the compression bandages, they are actually you're going to tie them over the area, and the purpose of applying these compression bandage in those conditions where you want to is to increase the hydrostatic pressure of the extracellular spaces. Like we can, you have also seen the compression garments in your home, your mothers or your grandmothers are using around at knee or ankle, and what they are going to give you a compression. And market there are different type of compression garments available according to different sizes, according to different their elasticity and their efficacy. And clinic, there are certain pneumatic pumps. The compression pumps are also called pneumatic pumps. They are going to help to drain the edema, especially for limbs. And these all, especially the pneumatic pump is for upper limb and lower limb, for hands, for arms, and for foot or the thighs and legs. So these are being used for the extremities of peripheral organs. Compression is generally used to improve the fluid balance and circulation. There are 2 or 3 main uses of the compression. The main use of the compression, and you can the significant use of the compression is to improve the fluid balance and circulation. Mean where we want to improve the circulation of the area. There is another additional role of this compression is to modify the scar tissue formation. This is a different thing that I'll tell you at the end of this lecture. And the main part of this lecture would be over how the compression is going to improve the fluid balance and circulation. So compression is going to improve the fluid balance by increasing the hydrostatic pressure in the interstitial spaces, and it is so that it becomes greater than the vessel. I'm again going to repeat, there are 2 types of the pressure in our tissues. One is interstitial pressure, hydrostatic pressure, and the other one is osmotic pressure. We have studied in the physics, osmotic pressure usually depends upon the solute constituents, solute particles, and the hydrostatic pressure is going to depend over the water content in those tissues. So if I draw here, I'm going to draw a blood vessel. Let's suppose this is a blood vessel, and these are the extracellular spaces around that. These zigzags are. So what is going to happen? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है ब्लड होता है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ था हमेशा वन थिंग मूव टुवर्ड्स द अदर डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर मीन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है अगर मैं कहूँ कि मेरी ब्लड वेसल में लो प्रेशर है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और बाहर ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है तो फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा तो अगर
Sorry, I'm going to repeat this sentence. I said if the fluid has to move from the higher pressure to lower pressure. अगर हमारी blood vessel में higher pressure होगा और बाहर कम होगा तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए fluid यहाँ से यहाँ move करेगा, मीन अंदर से बाहर की तरफ. लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हमारी जितनी भी conditions हैं जो हमारी हमने डील करनी है डीमा में, यही होता है कि बाहर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होता है, इसलिए फ्लूइड अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ द रीजन दैट देयर इज, जिसकी वजह से बाहर पे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जो हमारा प्रेशर है ना वो कम होता है और हमारा फ्लूइड लीक करके वेसल्स में एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. और हम चाहते हैं हम ऐसी कोई मैनेजमेंट करें कि फ्लूइड वेसल से बाहर ना आए. तो हम जो भी मैनेजमेंट करने वाले हैं वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर मीन वेसल के बाहर वाली जो स्पेस है उसका इतना ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम कर दें कि फ्लूइड बाहर आना ही ना चाहे, क्योंकि बाहर तो ऑलरेडी ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है. ये बात सबको क्लियर है? सबसे फर्स्ट वाली मैं दोबारा रिपीट करी, दो तरह के प्रेशर है, एक ऑस्मोटिक एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हमने पढ़ा है थिंग्स टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. अगर मेरी ब्लड वेसल में हायर प्रेशर होगा और बाहर लो प्रेशर होगा तो मेरा फ्लूइड वहां से लीक करके लो प्रेशर की तरफ वेसल से बाहर जाना शुरू कर देगा और अगर वो बाहर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा वो हो जाएगा एडीमा. वी वांट टू प्रिवेंट दिस एडीमा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रेज अ hydrostatic pressure outside the vessel so the fluid does not come out. वो अंदर से बाहर ना आए क्योंकि बाहर ऑलरेडी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है. सो इन दिस वे व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस फर्दर एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है वो भी अंदर जाना चाहेगा क्योंकि अंदर प्रेशर लो है. सो इट टेंड्स टू मूव बैक टुवर्ड्स द वेसल इन दिस वे. सो देयर आर टू बेनिफिट्स दैट वी आर गोइंग टू get. One is due to high hydrostatic pressure outside the vessel the fluid will not come out. Further, this high hydrostatic pressure will help us to the fluid to move in again. Is it clear to everyone? ये सबसे important फर्स्ट बात थी. Yes, ma'am. Sure. किसी को नहीं समझ लगी तो he or she can tell, क्योंकि इससे हमारी नेक्स्ट सारी बातें बार बार यही रिपीट होने वाली है. अकेले बता दें. I'm again going to tell the two types of the pressure. Number one is hydrostatic pressure, other one is osmotic pressure. Hydrostatic pressure is the one that is going to depend upon the water content, when the liquid content, solvent content पर depend कर रहा होगा. अगर हम यही कहें कि हमारी ब्लड वेसल के अंदर, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है ब्लड वेसल के अंदर और बाहर कम है, मीन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस या इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर. हमने कहा हमेशा हर चीज हाई से लो में मूव करती है. वेसल में हाई है इसलिए फ्लूइड लीक करके लो प्रेशर की तरफ जाएगा वहां पे इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए. और अगर वो बाहर चला जाएगा, वेसल से बाहर चला जाएगा तो वहां पे वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और वहां पे वो क्या करेगा, अल्टीमेटली एक लिमिट से, जो नॉर्मल बात नहीं है, उससे ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट कर देगा और वो एडीमा जिसको हम कह रहे हैं. हम चाहते हैं कि वो जब बाहर फ्लूइड ना आए तो हम क्या करें, बाहर इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हम बाहर का एनवायरनमेंट हाई कर देना. सो अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर देंगे और इस इंक्रीज की वजह से अब अंदर से बाहर कुछ नहीं आएगा फर्दर, बल्कि बाहर से अंदर वापस जाएगा. So compression is going to improve the fluid balance by increasing the hydrostatic pressure in the interstitial spaces, so that it becomes greater than the normal vessel, and after getting greater, this can limit or reverse the outflow of the fluid from the blood vessels and lymphatics. So keeping the fluid in the vessels or returning it to the vessels allows it to circulate rather than to accumulate in the peripheries. Is it clear now, Mariam? Yes, ma'am. So, Aisha, would you like to revise in your own words that what I have told you about hydrostatic pressure and osmotic pressure? Yes, ma'am. Hydrostatic is basically the pressure which is dependent on the solvent and the fluid consistent fluid. So, if the hydrostatic pressure is greater in the vessel, this is a common phenomena that always the things travel from the high concentration to lower concentration. So the fluid moves from the vessels into the interstitial space. So it can cause edema. So what we can do to control or reverse the blood flow, to reverse the fluid flow, so we can apply the compression therapy that will increase the
hydrostatic pressure of the interstitial space, so the fluid moves from the interstitial space to the blood vessels. So this is what I have told you. This is the main thing on which we are going to work over by applying the compression therapy and by applying the compression bandages or by applying the compression garment. So ये वो basic concept है जिसको अपने mind में रखना हमने again and again we are going to repeat these things again. So how we can, there are different ways of applying the compression. Like we can apply static compression, we may apply intermittent compression. Static mean the one that is going to exert a constant force, mean constantly आपने एक like हम compression bandage जो apply करते हैं एकदम हम tie कर देते हैं वो all the time you have tied it तो वो compression रहता है. So compression bandage जो आपने tie की हुई है, similar compression garment जो आपने पहनी है, they are going to give you static pressure. फाइन वो हमें इंटरमीडिएट नहीं हो सकता कभी कंप्रेशन उतारे कभी लगाए ऐसा नहीं होता यू आर गोइंग टू टायर्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट द इफेक्ट the other one is intermittent compression mean with the force varying over the time mean if 30 second compression आए 30 second नहीं आए 30 second आए 30 second नहीं आए like यहाँ 2 मिनट आए 2 मिनट ना आए like इस तरह के हम variations कर सकते हैं mean intermittent less intervals दे सकते हैं and this intermittent pressure or compression can be like get achieved by using pneumatic pump so जो आप ये picture देख सकते हैं सामने आपको screen पे एक picture show हो रही है she is wearing a sleeve over her leg so this sleeve can give two types of the pressure like either you are going to apply it constantly इसके अंदर air inflate हो जाए all the time 10 minutes के लिए on है all the time लगा रहे यही pneumatic pump को आप intermittent के लिए भी use कर सकते हैं like इसके अंदर आपने time duration set की होंगी 30 second the compression should come after 30 second वो deflate हो जाए 30 second inflate हो जाए 30 second deflate हो जाए so this would be intermittent static with all the time the force is going to exert intermittent with the force varying over the time. So there are different sizes of the sleeves that are present like for the knee, thigh और different तरह के होते हैं for lower leg के लिए full leg होते हैं सिर्फ hands के लिए हैं इस तरह के इसके साथ set में मिलते हैं pump के साथ. So with intermittent compression, दोबारा थोड़ी repetition आ गई the compression may be applied to the entire limb all one time या आप एक ही दफा पूरी एक दफा inflate हो जाए एक ही दफा deflate हो जाए और intermittent में हमारे पास options भी हैं मजे की बात है this is very interesting to tell you sequential intermittent compression ये क्या होती है like here in this picture you can see 1 segment 2 segment 3 segment and 4 segment like सबसे पहले अगर ये segment inflate करें फिर ये deflate हो जाए तो ये inflate कर ले ये inflate हो फिर इसकी बारी आ जाए like one by one every segment is going to have do you think this has any importance इसकी कोई significance है कि one by sequential compression की कोई significance हो सकती है तो मैं बताती हूँ this is a picture again in this you can first compression आ रहा है फिर इसको आ रहा है फिर इसको आ रहा है like in this way you can apply the compression. Now we will be discussing the effects of the compression therapy. That what are the physiological effects, the compression, the external compressions we are going to apply. The main and the important effect of the external compression is to improve the venous and lymphatic circulation. So this is the significant effects. So ये वो main बात है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा discussion करेंगे. Other two effects that are slightly less significant, they are to limit the size and shape of the tissues. How we can do this? I'll tell you. To increase the tissue temperature, कहीं आप चाह रहे हैं कि आपने insulation चाह रहे हैं, वहाँ tissue temperature को high करना चाह रहे हैं. So ये less significant बात है. सबसे जो main important बात है वो first point है जिसपे हमारी सबसे ज़्यादा discussion होगी. ठीक है? We'll discuss these two things as well. So number first was to improve the venous and lymphatic circulation. For this, we need to understand about the hydrostatic pressure and osmotic pressure, and we need to understand how in normal physiology they are going to work. जैसे हमें edema नहीं है, how the circulation is going to happen right now in my head, in my body, in your body. कैसे ये सब कुछ चल रहा है? So static and intermittent compression devices can increase the circulation. Since both can increase the hydrostatic pressure, so either you are going to do static, either you are going to use intermittent, but they are obviously going to work over the hydrostatic pressure जो आप tissues, external tissues के mean extracellular tissues के ऊपर apply करें, mean blood vessels के बाहर जो tissues हैं उनके ऊपर जो apply करें, हमारा purpose हमेशा उन्हीं के ऊपर working है. So an increase in the extravascular pressure कहते हैं जो आपने इन machines को apply करने बाद blood, it will limit the outflow of the blood from the vessel into the interstitial space. And where it tends to pool and keep the circulating system and where it can circulate.
where it tends to pool and keeping it in the circulating system. कहते हैं आपके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ाने से वो फ्लूइड अब मजीद बाहर नहीं आता, बिकॉज वो लो से हाई की तरफ नहीं जाएगा, इसकी वजह से अपने सिस्टम के अंदर सर्कुलेटिंग मीन ब्लड वेसल के अंदर ही रहेगा and tends to circulate instead of coming out of the vessel. So I said there are two types of the compression. The other one is intermittent. Intermittent की further आगे दो types हैं. Like overall intermittent में ये कि पूरी sleeve पूरी leg पे लगाया वो सारे इकट्ठे inflate हो और फिर deflate हो जाए. या इससे हमारे पास फर्दर एक टाइप है सीक्वेंशियल इंटरमीडिएट. सीक्वेंशियल इंटरमीडिएट इज अ वेरी इफेक्टिव बिकॉज वो ज्यादा अच्छा डीमा हेल्प कम करती है. कैसे उसको भी बताते हैं. सो इंटरमीडिएट कंप्रेशन इंप्रूव्स द सर्कुलेशन मोर इफेक्टिवली एज कंपेयर टू द स्टैटिक कंप्रेशन because the varying amounts of the pressure is sought to milk the fluid from the distal to the proximal vessel. अगर हम स्टैटिक कंप्रेशन और इंटरमीडिएट का कंप्रेशन कंपेयर करें तो इंटरमीडिएट इज मोर गुड जस्ट बिकॉज कि ये 30 सेकंड जो रेस्ट इंटरवल होता है ना हमारा, उसके अंदर वेसल्स को टाइम मिलता है कि वो रीफिल हो जाए. जबकि कांस्टेंट कंप्रेशन या स्टैटिक कंप्रेशन में कि आपने एक दफा कंप्रेशन अप्लाई कर दिया मीन ऑल द टाइम यू हैव इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस मीन हम मजीद उसके अंदर ना आए. लेकिन इसको अगर हम इंटरमीडिएट से कंपेयर करें तो जो रेस्ट इंटरवल है जिसके अंदर वो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम हमारी स्लीप कॉन्ट्रैक्ट करी हम ब्लड वेसल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं मीन वो ब्लड वेसल आगे मसल के ऊपर आता है, सेल्स के ऊपर आता है, वो ब्लड प्रेशर को भी ब्लड वेसल को कंप्रेशन मिलती है, वो फ्लूइड को आगे मूव कर देता है मीन. और जब रेस्ट इंटरवल में जाता है, रिलैक्सिंग फेज में जाता है, वो ब्लड वेसल बिल्कुल एम्प्टी होती है और बाहर फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेटेड है, वो भी रश करके अंदर आएगी. तो अंदर का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत लो है और हमने बाहर ज्यादा किया एकदम, और अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, इट टेंड्स टू रश टुवर्ड्स द वेसल बैक और इट विल गिव मोर good effect even as compared to the static compression because it will give you milking of the fluid from the distal to the proximal vessels. और जो मैंने एक और टाइप बताई थी सीक्वेंशियल, उसको भी हम फर्दर इससे अच्छा कहेंगे. वो कैसे? when the venous and lymphatic vessels are compressed, the fluid is then pushed proximally. Okay, fine. When the compression is being reduced, the vessels are open and refilled with the new fluid for the interstitial spaces. Okay, and ready to be pushed proximally at the next compression cycle. Obviously, जब वो refill होते हैं दोबारा, जब next cycle में contraction आएगी और compression आएगा, it will push the fluid forward in proximal direction की तरफ, body heart की तरफ करेगा. So this was about static and simple intermittent compression. Now we are going to enlighten the benefits of sequential compression. So it's considered even more effective because it is going to milk out the fluid more better. How? Like you can take example of my arm. Like if I take different, this is a one segment, this is the second segment, this is the third segment, and this is the fourth segment. What is going to happen if I'm going to apply the compression over my first segment? It is going to help me out that all the fluid that is present in the first segment is going to move towards the lymph nodes and all the like vessels that are moving towards the heart, and it will be ultimately free or have less workload. Then I'm going to apply the compression over this segment. It will allow the fluid to move from this segment towards the proximal one, from the distal to proximal. And ultimately this is going to move fluid this one, and the main fluid that is accumulated in my hand needs space to move forward. The third segment की जब तक टर्न आएगी, फोर्थ सेगमेंट पे लेके आएंगे, ये इस पे टर्न करेगा क्योंकि ये एम्प्टी है और इसको रिसीव भी कर सकेगा. इंस्टेड ऑफ वर्किंग फ्रॉम दिस सेगमेंट, मैं पहले यहाँ से शुरू करूं और इस फ्लूइड को पुश करूं कि ये सेगमेंट में जाए, जबकि इस सेगमेंट में ऑलरेडी फ्लूइड है, इट इज नॉट एबल टू लाइक ड्रॉ और लाइक वो सारा फ्लूइड नहीं ले सकता, और ये वाला फ्लूइड इसमें पुश करूंगी, उसके पास अपना है. सो व्हाट आई शुड need to do is I should first work on the proximal segment. I should make the fluid clear from this segment, then I will move fluid this to this, this to this, and ultimately I want to, मेरा हाथ एडिमेटस है, I want to work over this, मेरा यहाँ भी swelling है. So अब मैं इस fluid को train करूंगी कि वो move करे इस segment, it would be more beneficial. Is this clear? Is this clear? इसका मतलब है कि हम जी प्रॉक्सिमल से करेंगे फिर डिस्टल की तरफ जाएंगे. सीक्वेंशियल में हमें ऐसी सेटिंग करनी चाहिए. पहले देयर वाज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट कि सब पहले इस पे करते थे क्योंकि इसके अंदर स्वेलिंग थी और फर्स्ट इसको कंप्रेशन, फिर इसको कंप्रेशन, फिर इसको कंप्रेशन. लॉजिकली इफ यू थिंक, हाउ कैन यू आस्क दिस फ्लूइड टू मूव दिस सेगमेंट व्हिच ऑलरेडी हैव अ फ्लूइड? सही बात है ना? यस मैम.
तो हमें चाहिए कि हम पहले यहाँ पे जो फ्लूइड है उसको थोड़ा सा पुश कर लें नेक्स्ट की तरफ, वो हमारी लिम्फेटिक्स की तरफ और हमारी वेसल्स की तरफ, हार्ट की तरफ ड्रेन हो जाए, इसमें थोड़ा लेस स्पेस हो, फिर हम इसको इधर इसको फैसिलिटेट करें, फिर हम इसको फैसिलिटेट करें एट द टाइम ये जो फ्री है थोड़ा सा, इस पर वर्कआउट कम है, आप इसको इधर मूव करें तो वो ज्यादा अच्छी बेहतर स्वेलिंग होगी। इवन while we are in the फिजियोथेरेपी में जब हम मैनुअली भी कर रहे होते हैं कि जैसे पेशेंट्स होते हैं उनको आफ्टर डिफरेंट सर्जरीज उनको अपर लिम्ब की स्वेलिंग हो जाती है, लोअर लिम्ब की स्वेलिंग हो जाती है, और उनका मेरे पास एक पेशेंट थी उनको स्वेलिंग थी और उनकी सर्जरी हुई थी, उसके बाद से उनकी जो लिम्फेटिक्स थे वो ब्लॉक्स थे, तो उनका फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो क्या करती थी, वो यहाँ से वर्क करते थे, उनको डॉक्टर ने जो भी उनके कंसर्न थे उन्होंने कहा था कि फ्लूइड को आप मैनुअली जैसे सॉफ्ट टिश्यू से मोबाइल करें, मूव द फ्लूइड, वो इस तरह कहते थे जिस तरह मसाज करें फ्लूइड को और फ्लूइड को मूव करें। वो इतना करती थी, वो फ्लूइड आगे जाता नहीं था, क्योंकि जब तक यहाँ भी फ्लूइड है और उनकी पूरी लिम्ब एडिमेटस थी, लाइक बाजू राइट ही थी, और वो आगे करती थी, वो आगे कहीं नहीं जाता था। व्हाट शी नीड टू डू इज, सबसे पहले वो पूरी उनकी आर्म स्वेलिंग थी, तो सबसे पहले उनको ये वर्किंग करनी चाहिए कि सबसे पहले इसको क्लियर करें, इसको क्लियर करें, इसको क्लियर करें, फिर फ्लूइड को इधर मूव कराएं, जो भी मैनुअली भी सॉफ्ट टिश्यू करा रहे हैं आप फ्लूइड को मूव कराएं, फिर इसको इधर से मूव कराएं, फिर इसको इधर मूव करें, अल्टीमेटली इसको इधर मूव करें। ऐसे होना चाहिए ना लॉजिकली। इज इट मेक सेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is the working about the sequential compression. However, even in the old practice, even nowadays, बहुत सारे लोग यहीं से वर्क करते हैं, but according to the latest research, we start from the proximal direction अगर हम sequential working करें, ठीक है? Okay, ma'am. फतेह आपने ये भी सुना होगा जी जी आशा। मैम अगर हम इसको एलिवेट कर दें लिम्ब को तो भी नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं यही नेक्स्ट माय पॉइंट इसी में ऐड करने लगी थी कि हमने हमेशा ये पढ़ा हुआ है प्रोटोकॉल रेस्ट में, रेस्ट आर वो राइस प्रोटोकॉल के अंदर रेस्ट, E for elevation, I for icing, C for compression, ऐसे ही ना, प्राइस प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, Yes, कंप्रेशन, ma'am. एलिवेशन। और हम ये कहते हैं कि हमें फ्लूइड को एलिवेटेड, लिम्स को एलिवेटेड रखना चाहिए, या बाजू है तो उसको सामने पिलर, इवन पेशेंट जिनको हम न्यूमेटिक पंप यूज करते हैं उनको फैसिलिटेट करने का एडिशनल उनके साइड पे पिलर रख के उनकी बाजू को फैसिलिटेट करें फ्रॉम टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करें, इस टाइप के वो डिपेंडेंट पोजीशन पे हो। अगर एक पेशेंट डिपेंडेंट पोजीशन में है, आप फर्दर वर्किंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, उसको एडिमा है, योर एडिमा और एक्सरसाइज इज नॉट एबल टू हेल्प, कि वो कोई मदद नहीं कर सकता कि एडिमा को काम करे, बिकॉज आप डिपेंडेंट पोजीशन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, आप साथ में एक्सरसाइजेस करा रहे हैं और साथ में उसको फ्लूइड को पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन दिस वे द exercise in the dependent position is not going to help you to resolve the edema. सो हमने एलिवेटेड रखनी है, हमने ऐसा पोजीशन बनानी है कि अगर लेग है तो हम बेड पे लटा के पिलोज रख के उसको रेस करेंगे, फुट एंड को रेस रखेंगे, अगर आर्म है तो आप साइड लेग में लटा के उसका बाजू रेस करेंगे, सीधा लटा के उसके साइड पे रख के नीचे बाजू रेस करेंगे, ठीक है? So this sequential compression gives you cause a wave of vessel constriction and it is moving in the proximal direction to ensure that the fluid is pushed along the vessel. तो जो अभी मैं बता रही थी, दो हमारे कॉन्सेप्ट आगे एक और भी बात आने वाली, अभी जब मैंने बताया वो मैंने न्यूमेटिक पंप के पॉइंट से बताया है कि सीक्वेंशियल कंप्रेशन में हमें या मैनुअल थेरेपी में जब हम कर रहे हैं तो हमने प्रॉक्सिमल सेगमेंट को पहले फ्री करना है। अभी मैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में जब मैं कंप्रेशन बैंडेज की बात करेंगे, कंप्रेशन बैंडेज हमेशा डिस्टल टू प्रॉक्सिमल अप्लाई करनी है, ठीक है? क्यों भला जी प्लीज। मैम ये जो हमारे पास वो होगा इंटरमीडिएट होगा उसके अंदर इसलिए करेंगे कि वो पहले जो होते हैं वो पुराने वाले हमारे जो सेगमेंट्स हो गए उन्हें उनसे फ्लूइड जो होता है वो फ्री करना होगा, लेकिन जो हमारे पास एक कांस्टेंट हम लोगों ने फोर्स अप्लाई करनी है स्टैटिक कंप्रेशन से, वो प्रोक्सिमली टू डिस्टल इसलिए करनी चाहिए, हार्ट की तरफ करना चाहिए ना उसे। हमने हाँ जी बिल्कुल, जो कंप्रेशन बैंडेजेस हैं वो हमने हमेशा, अभी ये इसको उसके साथ मिक्स ना कर दीजिएगा कि मैम ने कहा था पहले प्रॉक्सिमल से शुरू करना है, वो जब हमने फ्लूइड को मूव कराना है और सेगमेंट टू सेगमेंट वर्क करें, लेकिन अगर मैं इससे जो कंप्रेशन बैंडेजेस है हमने हमेशा फ्लूइड को डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ही कराना, यही हमारा मेन पर्पस है। सो वी शुड स्टार्ट द बैंडेज फ्रॉम द डिस्टल और हम बैंडेज को रैप करते जाएंगे, डिस्टल से उसको प्रॉक्सिमल डायरेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से कंप्रेशन ज्यादा रखेंगे, ज्यादा भी मॉडरेट माइल्डली होगा, उसको ग्रेजुअली आगे लेते जाएंगे और अल्टीमेटली हम उसको यहाँ तक लेके आएंगे। वी विल अलाउ आवर फ्लूइड टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस, ठीक है? और अगर हम इधर से कंप्रेशन बैंडेज नहीं शुरू करेंगे, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना कि हम यहाँ से अप्लाई कर दिए तो आप फ्लूइड को कह रहे हैं इधर से इधर मूव करें, तब
जी मिस आशा, आप कुछ पूछ रहे थे, यू वर आस्किंग समथिंग। यस मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जो हम बैंडेज है वो हमेशा हम डिस्टल से प्रॉक्सिमली अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, जो बैंडेज है हमेशा हम डिस्टल से प्रॉक्सिमल ही डायरेक्ट करेंगे, और जब हम अप्लाई करेंगे हमारा उसका जब हम एप्लीकेशन टेक्निक्स में पढ़ेंगे हमेशा फर्स्ट द डिस्टल we will move towards the proximal direction because we want our fluid to move from distal to proximal direction. So हम शुरू में इसको थोड़ा टाइट करते जाएंगे because हमने पढ़ा जितना हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो लो की तरफ मूव करते हैं ना, तो हम स्टार्ट वाली टाइट ज्यादा रखेंगे ताकि पहले ज्यादा हो फिर कम हो फिर ग्रेजुअली कम हो फिर फ्लूइड उस तरफ मूव करता है उस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, ओके मैम। जब एप्लीकेशन टेक्निक्स पे ये बात दोबारा रिपीट करेंगे, इट वुड बी इन हाइलाइट्स के ये हम हमेशा कंप्रेशन बैंडेज डिस्टल टू प्रॉक्सिमल अप्लाई करते हैं और हमारा फ्लूइड भी एक्चुअली डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ही मूव करना होता है। लेकिन जब हम सीक्वेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तब थोड़ी हम लोकलाइज हो जाते हैं, तो फिर हम और थोड़ा डिफरेंट वर्किंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉजिक एंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, Okay, ma'am. what we are going to do is we are going to improve the circulation and going to benefit the patient with edema, which is having edema, by preventing the formation of venous thrombosis in high risk patient and by facilitating the healing of the ulcer caused by the venous stasis. Who are the high risk patient for the venous thrombosis? Who are the patient मैम who have more bedridden risk to the, who are bedridden, who have fractures, who have any pathology related to the limbs due to which they are not able to move and do Ma'am, proper contractions. comatose patients also. कोमाटोस पे आईसीयू में जो एडमिटेड है वो पेशेंट्स और स्ट्रोक के पेशेंट्स दे आर हैविंग मोर रिस्क, सो उनके अंदर हम इनको यूज करते हैं इन ऑर्डर कि हम अपना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा रखें क्योंकि उनका पहले ही सर्कुलेशन पोर है, हम उनको एनहांस करना चाहते हैं कि वहां पे वीनस थ्रोम्बोसिस वगैरह ना बने ना फ्लूस्टेसिस हो। और ये वो पेशेंट जिनकी वीनस सर्कुलेशन पोर है और उनको कोई अल्सर हो गया है और अगर हमारे टिश्यूज को नॉर्मल भी हीलिंग के लिए ऑक्सीजन न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, बट इन केस इफ द वीनस सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट इज पुअर तो उसमें अल्सर हीलिंग नहीं बेहतर होती। आपने सुना होगा कि डायबिटिक्स के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई चोट लगती है तो जल्दी हील नहीं करती और स्पेशली लोअर लिम्स में लगती है तो उनको पता भी नहीं चलता पाँव पे चोट लगी जाती है क्योंकि उनका जो वीनस जो ब्लड फ्लो है ना वो इफेक्ट हो रहा होता है, इससे उनकी हीलिंग भी डिलेड होती है। So the second point is the effect was the limit the shape and the size of the tissue, that we may use compression in case of when we want to limit a size of tissue. जैसे कि आपने सुना होगा एम्पुटेशन हो जाती है, किसी की लेग एम्पुटेट हो जाती है या बाजू कट ऑफ हो जाता है, तो उसके जो लोअर एंड्स होते हैं अगर हम उसको शार्प कंप्रेशन बैंडेजेस ना अप्लाई करें, कंप्रेशन ना दें और जो एंड वाले एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं उनको एक ओपन एंड देते हैं, उन पे प्रेशर एग्जर्ट करके ना रखें, तो फ्लूइड टेंड्स टू मूव फ्रॉम द हाई एरिया टुवर्ड्स द लोअर एरिया, मीन फ्रॉम हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस दैट हैव अ लो प्रेशर, उसकी वजह से वो डिसफिगर कर देंगे। सो यू वांट कि वो जो एंड है जो एम्पिट्यूटेड है हम उसको कंप्रेशन बैंडेजेस देके उस पे कंप्रेशन रखें और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर वक्त ही ज्यादा रखें कि फ्लूइड को एक मिले ही ना स्पेस के वो वेसल से बाहर आके accumulate हो सके और डी शेप कर दे इस एरिया को। So our compression is going to act as a second skin which is having elastic compression element or being less extensible than the skin because it is going to act like a other than skin भी alternative to skin की तौर पे act कर रहा होगा जो उधर hydrostatic pressure को ज्यादा करके रखेगा। And static compression devices are being used for this purposes, mean bandages use करते हैं इस purpose के लिए कि उस एरिया की शेप और साइज को आप लिमिटाइज करके रखें। ये थोड़ी सी बात क्लियर हुई है, मैं दोबारा भी हमारे स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। मैम ये फिर कितने करते हैं? क्या करते हैं मैम आपने कहा ना कि हम लोग जो होते हैं वो स्टैटिक कंप्रेशन जो होते हैं वो कर देते हैं जिनकी कट वगैरह हो जाते हैं, तो मैम फिर उनको तो परमानेंटली बैंडेजेस लगानी पड़ेंगे, तो उनकी स्किन डैमेज नहीं होगी इससे क्या? तो दूर उनको हम उस उतने एरिया तक जब तक उनका जो वूंड है वो क्लियर हो जाएगा हम उसके साइड्स पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसलिए बढ़ा के रखेंगे ताकि फ्लूइड को स्पेस ना मिले वहां तक, मतलब हमेशा के लिए नहीं लगाएंगे जब तक वो वूंड हील हो जाएगा और उसकी जो फिगर है वो क्लोज हो जाती है सारा शेप देने के लिए। ताकि आपने सुना होगा प्रोस्थेटिक्स होते हैं आर्टिफिशियल जो लिम्स मिलते हैं उसके अंदर उसको फिट इन करने के लिए, आपने कभी किसी मूवी में या किसी डेली लाइफ में किसी के लेग एम्पुटेटेड हो उन्होंने आर्टिफिशियल एक कह लेंगे प्रोस्थेसिस के अंदर उसको सेट कराया होता है ना, अगर वो शेप में होगा तो वो उसके अंदर सेट होगा ना। पर्पस हमारा ये है कि वो जो एंड है उसको आप एक शेप में रखें, वो अगर आप यहाँ पे इसको नहीं कंप्रेशन देंगे वो डिसफिगर हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ भी इस तरह बन जाएगा।
तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, जब तक उसका वुंड हील नहीं हो जाता और वो क्लियर नहीं हो जाता, आप उसकी सेल्स को एक स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देके रखेंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके। It will come again in our clinical indications about the limit in shape and size of the tissues. Number third effect is increased tissue temperature. क्योंकि हमारी compression bandages हैं, ये tissue temperature को ज्यादा करती हैं, और हम एक कुछ स्पेसिफिक जगहों पे पॉइंट्स पे हम इनको यूज कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं कहूँ कि स्कार्स के बारे में आपको पता होगा। So scars are the increased collagen, वहां पे adhesions बने होते हैं, वहां पे accumulated होता है, तो ये वाला पॉइंट वहां पे मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। So you would be thinking कि स्कार के अंदर ये हीट के प्रोडक्शन कैसे इफेक्ट कर रही होगी। एक्चुअली ये ऐसा कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दे रही होगी, लेकिन एक जनरली हमारी टिश्यूज बॉडी में एंजाइम होता है कोलेजनेज। एज होता है एंजाइम कोलेजन को ब्रेक डाउन करने वाला। तो स्कार टिश्यूज के अंदर हाई लेवल ऑफ कोलेजन होता है, और एक्चुअली हम चाहते हैं कि इस कोलेजन के फाइबर्स रफ से जो डेड से स्किन बन जाती है ना, डी शेप्ड, उसके अंदर कोलेजन होता है। हम चाहते हैं उसको उसको शेप में करने के लिए उसके अंदर कोलेजनेज एंजाइम होता है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको वार्म अप रखें इस एरिया को, तो जब टिश्यू टेम्परेचर बढ़ता है तो कोलेजनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे वो अपनी एक्टिविटी करता है, और जो उसको इर्द गिर्द टेढ़ी मेढ़ी चीजें नजर आती हैं जो डिसफिगर और अरेंज हुई है, वो उनको सेट करने की कोशिश करता है, बाय उसकी ब्रेक डाउन करके उसको फिगर में लाने की कोशिश करता है। हम आप खुद भी इवन इन विंटर्स के अंदर हम बहुत सारी चीजें एज अ वार्मर्स पहनते हैं, इसी तरह वो ऑब्वियसली हम वार्मर्स पहनते हैं, यही चाहते हैं ना कि स्किन टेम्परेचर ज्यादा रहे, और स्किन टेम्परेचर के ज्यादा होने से हम वार्म फील करते हैं। हम इनडायरेक्टली इस टिश्यू टेम्परेचर के ज्यादा होने के इफेक्ट को जहाँ पे स्कार्स बने वहां पे यूज करते हैं, ताकि उन स्किन का टेम्परेचर ज्यादा रहे, वो वार्म रहे, इंसुलेटेड रहे, और उसके इंसुलेटेड होने से वहां पे कोलेजनेज एंजाइम डायरेक्टली एक्टिव हो जाए और खुद ही अपनी उस एरिया की मैनेजमेंट करे। ये कोई इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, और ये कोई हम नहीं कह सकते जैसे हम कह रहे हैं फ्लूइड को हम सर्कुलेशन को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। हम इसको किसी स्पेसिफिक साइड पर्टिकुलर टास्क के अंदर यूज करते हैं, और इनडायरेक्टली टिश्यू टेम्परेचर के इंक्रीज वाले इफेक्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कि ये इफेक्ट अब हम भी यूज करते हैं वैसे विंटर्स में, वी आर वेयरिंग वार्मर्स, एंड द पर्पस ऑफ वेयरिंग वार्मर्स दे आर थोड़े कंप्रेस भी करते हैं, क्योंकि जितना वो उनके अंदर इलास्टिसिटी होती है वो थोड़ा बॉडी को कंप्रेस करके रखते हैं और वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। द सेम कंसेप्ट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय आवरसेल्फ इवन इन विंटर्स। ठीक है? Yes, ma'am. So I again think this is not a direct effect of the compression force. The proposed mechanism by which is कहते हैं कि यहाँ शायद टिश्यू के टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वहां पे टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है जो कोलेजनेज है वो एक्टिव हो जाता है, which breaks down the collagen and produced by these garments. Okay? Yes, ma'am. The next thing we need to discuss is about the clinical indication for the use of compression, external compression. This is a very important, these clinical indications are very important. Like initially हमने आज जो टॉपिक पढ़ा उससे next वाला lecture जिसमें हम edema, we will discuss about the edema due to venous insufficiency, edema due to lymphatic obstructions, edema, deep venous thrombosis, venous disease ulcers, and how we are going to use compression in residual limb shaping after amputation and control of hypertrophy scarring. This lecture is even more important and interesting if you have an understanding of today's lecture. I recommend all of you kindly join the next lecture as well, and in this we will be discussing about all these indications in detail and how the compression therapy is going to help us out. And if you have any queries related to this, let me know so that we may wind up this session and we'll move towards another interactive session that is related to group presentation of compression therapy. Gee, do you have any questions related to this topic? No, ma'am. Hopefully everybody find this lecture interesting, and inshallah there will be a quiz over this weekend related to the compression therapy. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Okay, thank you.